ਸਿਆਸਤ, ਵਪਾਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮਜ਼। ਨਮਸਕਾਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਮਿਲ ਭਾਟੀਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਲੰਧਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੈਗਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਪਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਵ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਤਿਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਰਡੀਨੋਵਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸਿਸ 300 ਤੋਂ ਵੀ पार हो गए, बचाव किस तरह किया जाए? देखिए, कोविड-19 बीमारी जो सभी के लिए नई है और हमें डर के साथ साथ अगर सचेत रहें, प्रिकॉशंस लें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लॉकडाउन का टाइम था तो हमारा ये था स्टे होम स्टे सेफ, बट अब लॉकडाउन पार्शली खुल रहा है तो मेन चीज़ हमें प्रिकॉशंस एंड देन स्टे सेफ। प्रिकॉशंस में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने। अगर हम खुद और दूसरा पर्सन मास्क पहने होगा तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम होंगे। तो हमें डरने से ज़्यादा ज़रूरी है अब प्रिकॉशंस लेना, क्योंकि अब लॉकडाउन खुलेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखो, जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लिए जाएंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि वर्क प्लेस पे अगर एक भी इन्फेक्टेड पर्सन पहुंचता है, जो नॉट ओनली कि उसको कोई सिम्टम्स हैं, मोस्टली हमारे 80% ऑफ द पेशेंट्स जिनको इन्फेक्टेड होता है कोविड-19 से, वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मतलब उनको कोई लक्षण ही नहीं होता, ना कोई बुखार होगा, ना कोई खांसी होगी। और ये 80% लोग ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं जो अपनी वर्क प्लेस पर इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। तो हम जब वर्क प्लेस पर जाएं, हमें हर आदमी को जिससे भी हम मिलें, हमें यह सोचकर मिलना चाहिए कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है। और हम जब भी मिलें उससे डेफिनेटली हमें हाथ तो मिलाना ही नहीं है। ये तो अब बहुत अच्छी जागरूकता लोगों में आ गई है, नमस्कार कर और सिर्फ सर हिलाकर ही अभिवादन करें। दूसरा, अगर हमने भी मास्क पहना है और अगर कोई हमारे से मिलने आया है और उसने मास्क नहीं पहना तो उसको मास्क पहनाएं। कोई भी अननेसेसरी चीज़ें टच ना करें। अगर सपोज़ हमें स्टेयर्स पे चढ़ना है तो स्टेयर्स पे हाथ नहीं लगाना है, लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है। और जैसे आजकल की बिल्डिंग्स, ऑफिसेज एसी वाले हैं, सेंट्रल एसी होना चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एक एसी की गाइडलाइंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोशिश करें कि हमारे बिल्डिंग में एग्जॉस्ट फैन लगा हो, फ्रेश एयर ओपन हो। एसी में एक ऑप्शन होता है कि फ्रेश एयर ओपन होनी चाहिए। फ्रेश अगर एयर को हम एसी के एयर के साथ में मिक्स कर प्रोवाइड करें तो इन्फेक्शन के चांसेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ एसिम्टोमैटिक केस आ रहे जिन्हां ਦਾ आम तौर ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, क्या थोड़ी बहुत भी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है खुद ही कि वो एसिम्टोमेटिक हैगे आ? क्योंकि आम तौर पर हुण तक इस तरह का नज़र आ रहा है कि ज़्यादा क्लैरिटी, क्योंकि तुसी
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ बहुत भी नज़ला जुकाम ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ कोविड-19 ਤੇ नहीं हो गया। देखिए, एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स, इसमें हमें दोनों में फ़र्क समझना है। एसिम्टोमेटिक का मतलब है कि उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, इवन माइनर नज़ला जुकाम भी नहीं है, बुखार भी नहीं है। तो इसमें कोविड-19 से इन्फेक्टेड 80% ऑफ पेशेंट्स जो हैं बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं। इनको पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, अगर कोई बंदा किसी फैमिली में और किसी वर्क प्लेस पर इन्फेक्टेड पाया जाता है तो वो जिससे मिला है हमें उसके टेस्ट करने हैं। ओनली टेस्ट कैन आइडेंटिफाई एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स। अब जहाँ तक माइल्ड सिम्टम्स का सवाल है, थोड़ा नज़ला जुकाम हो गया है, किसी को फीवर है, तो हमें हाई सस्पिशन रखना चाहिए कि ये कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो सकता है। उसकी सिर्फ हिस्ट्री, जिसमें अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट है जिससे वो मिला है और उसको कोविड-19 पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसके टेस्ट कराने चाहिए। क्योंकि 80% पेशेंट्स तो हमारे विदाउट एनी सीवियर सिम्टम्स, विदाउट ब्रेथलेसनेस ही ठीक हो जाएंगे। इवन माइल्ड फीवर से भी लोगों को पता ही नहीं चलता, सिंपल वायरल फीवर समझ के ठीक हो जाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਮੈਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, जैसे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स जिनको हम मेनली कह रहे हैं, पुलिस वाले जो ड्यूटी दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी और हेल्थ वर्कर्स, इन सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो अपनी वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क पहने। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कोविड-19 पेशेंट्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे हेल्थ वर्कर्स, तो उन्हें पीपीई किट पहननी बहुत मस्ट है। अब पुलिस वाले या हमारे एम्बुलेंस के लोग जो सीधे कोविड-19 पेशेंट्स को कांटेक्ट में आते हैं, उनको लेने जाते हैं, क्वारंटीन करते हैं, उन सबको भी प्रॉपर मास्क और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने में आई है सभी कंट्रीज़ में और इवन इंडिया में भी, कि अबव 60 ईयर्स अगर कोविड-19 इन्फेक्शन आता है तो उसके सीरियस होने के, वेंटिलेटर पर जाने के या डेथ होने के चांसेस यंग पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे केसेस में हमें अपने वर्क फोर्स को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि जो 60 ईयर्स से ज़्यादा के लोग हैं उनको, पुलिस वालों को, सफाई कर्मचारियों को और हेल्थ वर्कर्स को ऐसी ड्यूटी दी जाए जो ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना आए, स्पेशली जो कोविड-19 पेशेंट्स इन्फेक्टेड हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਗਿਆ, क्या ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, क्या ਇਸ ਦੇ ਚਾਂसेस ਹੈਗੇ? देखिए, कोविड-19 आज की डेट में सभी लोगों के लिए नया है और इसके बारे में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जितना पहले देखा गया था कि कोविड-19 पेशेंट्स में अगर एक बार रिकवरी हो जाती है तो वो ठीक हो जाते हैं और दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में देखा गया है लाइक चाइना और साउथ कोरिया, यहाँ पे रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस हो रहा है। रीएक्टिवेशन का मतलब ये है कि बॉडी में वायरस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, इवन आफ्टर 14 डेज या एक्सटेंडेड क्वारंटीन पीरियड ऑफ 1 मंथ, इसमें रीएक्टिवेशन हो जाता है। ये देखा गया है कि इंटेस्टाइन के अंदर या बॉडी के किसी पार्ट के अंदर ये वायरस छुपा रह जाता है और जैसे ही बॉडी इम्यूनिटी कम होती है इसका रीएक्टिवेशन हो जाता है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये रीएक्टिवेशन है या री इन्फेक्शन है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोविड-19 के अभी तक मोर देन 30 स्ट्रेन्स आ चुके हैं। मोर देन 30 स्ट्रेन्स का मतलब ये है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ वायरस है। अगर किसी की बॉडी में इम्यूनिटी एक वायरस स्ट्रेन के अगेंस्ट बन गई है तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरे वायरस स्ट्रेन के अगेंस्ट भी बॉडी इम्यूनिटी उसको वर्क करे। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ है ਜਾਂ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ हैगा। बिल्कुल, अभी हम कोई भी कॉन्क्लूसिव एविडेंस ये नहीं है कि कोविड-19 से ट्रीटेड पेशेंट्स को री इन्फेक्शन हो रहा है या रीएक्टिवेशन, जैसे कि बॉडी में वो कहीं छुपा हुआ है और दोबारा एक्टिवेट हो रहा है।
अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको क्लैरिटी के साथ में विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्लियर करेंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਡੈਥ ਰੇਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 6% ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੈ? देखिए, डेथ रेट से हमारा मतलब ये है कि कोविड-19 पेशेंट्स जितने हमने आइडेंटिफाई किए हैं टेस्ट से, उसमें कितनों की डेथ हो गई है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हम अपने टेस्ट उन्हीं लोगों पे कर रहे हैं जो सिम्टम्स हैं जिनको, या जो कोविड-19 के पेशेंट्स के इन्फेक्टेड पेशेंट्स के कांटेक्ट में आए हैं। तो उसमें ही अगर हम सिर्फ टेस्ट करेंगे तो हमें डेथ रेट डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा। लेकिन काफ़ी हद तक ये पॉपुलेशन ऐसी होगी जो एसिम्टोमेटिक होगी और कोविड-19 से इन्फेक्टेड होगी। तो उस चीज़ को हम टोटली अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं। अगर हम उसको इंक्लूड करें और जनरल पॉपुलेशन में देखें कि कोविड-19 कितने पेशेंट्स हैं और उसमें डेथ रेट देखें, तो डेफिनेटली डेथ रेट इज़ नॉट मोर देन 1 to 2%। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो घबराएं ना, घर पे ना बैठें, अपना टेस्ट कराएं। और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डेथ वारंट लिखा गया। क्यों? क्योंकि इसकी मरने के चांसेस हार्डली 1 to 2% हैं। ये कोई भी फ्लू की तरह हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस लें और अगर आप प्रॉपर क्वारंटीन करें तो दूसरे लोगों को ना फैलें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए गवर्नमेंट ये कह रही है और हम सब लोगों का यही एडवाइस है कि प्रॉपर ट्रेसिंग, प्रॉपर एंड टेस्टिंग। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬ੍ਰੇਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ये तो हमने भी नोट किया है कि हमारे पास में हार्ट अटैक के पेशेंट्स और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स बहुत कम आ रहे हैं। इसके जो कंक्लूसिवली तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर हम पोस्टुलेट करें तो आज की डेट में डेफिनेटली कोरोना वायरस का स्ट्रेस तो है, लेकिन डे टू डे स्ट्रेस कम हो गया है। लोगों का खान पान, जो बाहर खाते थे, फ्राइड फूड खाते थे, और जो स्ट्रेस था वो काफ़ी कम हो गया है। उस वजह से भी हो सकता है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स कम हो रहे हों। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि हमारे पास में पेरिफेरी से पेशेंट पहुंच ही नहीं पा रहा हो बड़े हॉस्पिटल में। यह चीज़ नॉट ओनली इन इंडिया, अमेरिका, यूरोप, सभी कंट्रीज़ में ये नोटिस किया गया है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स टर्शरी हॉस्पिटल्स में कम पहुँच रहे हैं। डॉक्टर साहब आजकल बहुत चर्चा हो रही है प्लाज्मा थेरेपी की, क्योंकि ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇदेमंद हैगी है? देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक वेल नोन ट्रीटमेंट है जो वायरल इलनेस में पहले भी किया जाता था, जब से स्पेनिश फ्लू आया था, इबोला वायरस आया था। यह इस डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, ये विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पता चलेगा। जैसे अभी कल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि दिस इज़ नॉट वैलिड ट्रीटमेंट, यह अभी इन्वेस्टिगेशनल स्टेज में है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है ये हमें समझना है। जो कोविड-19 पेशेंट्स ठीक हो गए हैं, वो ठीक होते हैं कि बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम बनता है जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ वायरस को किल करती हैं। एक सर्टेन लेवल पे एंटीबॉडीज़ इतने वायरस को किल कर देती हैं कि बॉडीज़ में वायरस ख़त्म हो जाता है और IgM इनिशियली एंटीबॉडी बनती है और लेटर ऑन IgG एंटीबॉडी बनती है। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है। जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं आफ्टर 1 month ऑफ ट्रीटमेंट, उनमें एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती हैं और इसीलिए उनको दोबारा कोविड-19 वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। अब जो पेशेंट इनिशियल स्टेज में कोविड-19 में सीरियसली इन्फेक्टेड है, जो सांस की तकलीफ है, वेंटिलेटर पे हैं, उनमें वायरस लोड ज़्यादा होता है और एंटीबॉडीज़ या तो अभी बनी नहीं होती हैं या इनिशियल स्टेज में इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं होती हैं। तो यह जो पेशेंट ठीक हो गया है उसके प्लाज्मा से एंटीबॉडीज़ निकाल कर जो इन्फेक्टेड सीरियस पेशेंट्स है, जो वेंटिलेटर में हैं, उनको दी जाती हैं। अभी दिल्ली में भी 4 पेशेंट्स GB पंथ में और एक मैक्स हॉस्पिटल में
ट्रीट किया गया है और इफेक्टिवली ट्रीट किया गया है। लेकिन अभी भी हम इस ट्रीटमेंट को इलीगल ट्रीटमेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज नहीं किया है, और आईसीएमआर ने कहा है जहाँ भी बड़े हॉस्पिटल्स में यह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनकी परमिशन से दिया जा रहा है विद प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। यह इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशनल फेज में है। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਚ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ नहीं करेगा। ये पोटेंशियली एक गुड ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अभी भी हम इसको, जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये रामबाण नहीं है। मतलब ये है कि ये हम इसको शोर ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। हाँ, अगर ये ट्रीटमेंट अगर और केसेस में ट्रीट करके सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकता है। पोटेंशियली इट्स कुड बी अ गुड थिंग। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ? लोगों का सामने ना आना तो डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर सामने अपने आप नहीं आएंगे तो वे दूसरों को फैला सकते हैं, और दूसरों को फैलाने का रोकना हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम टेस्टिंग करें, इनको क्वारंटीन करें। डर इसलिए है क्योंकि ये एक स्टिग्मा सा बन गया है कि अगर किसी को कोविड-19 इन्फेक्शन है तो वो एक बदनाम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं समझना चाहिए। इसको एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इसकी डेथ रेट बहुत लो है, 1 to 2%। अगर हम प्रॉपर ट्रीट करें, घर पर छुपकर ना बैठें और इस स्टेज तक ना पहुँचे कि जब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, सांस फूले, तभी हॉस्पिटल जाएं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ होती है तभी लोग सस्पेक्टेड केसेस में हॉस्पिटल जा रहे हैं। दूसरा कारण लोगों को ये लगता है कि हमें हॉस्पिटल में जाके वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आज की डेट में हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट्स का बहुत ही अच्छा देख रेख की जा रही है और बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, अपने आप सामने आना चाहिए अगर किसी को भी जरा सा भी अंदेशा होता है कि मुझे कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक इस असलियत है या मिथ है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ हैगा इस तरह के फिर केस हैंडल करने का? देखिए, कुछ साल पहले जब स्वाइन फ्लू आया था तभी से हॉस्पिटल्स को ये ट्रेनिंग दी गई थी कि कभी भी ऐसे हाईली इन्फेक्टिव वायरस कोई पेशेंट आए तो हम उसको कैसे ट्रीट किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। अब कोविड-19 आने के बाद में लोगों को अवेयरनेस आई है कि कोई भी हाईली इन्फेक्टिव डिजीज़ हो तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे हेल्थ वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दी देना चाहिए, जिसमें हाई क्वालिटी इक्विपमेंट होने ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि अगर वही अगर इन्फेक्टेड हो जाएं तो हमारा सारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। बिल्कुल। तो हमें अपने हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्शन के साथ में यह डिज़ीज़ की अवेयरनेस करानी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और अपने स्टाफ को ऐसे हमें अपग्रेड करना चाहिए कि जिससे कि वो ऐसे कोई भी पेशेंट आए तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BCG ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਭ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? देखिए, ये BCG वैक्सीन और मलेरिया जहाँ पे भी प्रिवेलेंट है वहाँ पे ये देखा गया है कि कोविड-19 का इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीवियरिटी नहीं आ गया है इन कंपैरिजन टू कंट्रीज़ जहाँ पे मलेरिया नहीं है या BCG वैक्सीन नहीं है। इसकी एक क्रॉस इम्यूनिटी होती है। BCG वैक्सीन जिनके पास लगी गई है उनमें कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसे डेवलप्ड होते हैं कि वो ट्यूबरक्लोसिस को नहीं होने देते।
तो यह एक सस्पेक्ट किया गया है या एक पॉस्टुलेट किया गया है कि ऐसे लोगों को कोविड-19 इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हैं। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि यह फुल प्रूफ प्रिकॉशन है। इसीलिए देखा गया है कि बीसीजी जहाँ जिन जिन कंट्रीज़ में दिया गया है वहाँ कोविड-19 का इन्फेक्शन कम हुआ है। ਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ करेगी? देखिए डिफरेंट इसके लिए ओपिनियन है। डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी अपनी गाइडलाइंस बनाई हैं और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन बनाई है उसके हिसाब से जनरल पॉपुलेशन को फॉर प्रिवेंशन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रूटीन इंटेक नहीं लेना है। उन लोगों को जो कोविड-19 पेशेंट्स डील कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन्हीं को प्रिकॉशन लेना है। और जहाँ तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ है, यह भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन हाँ, जैसे कहना चाहिए कि एक रे ऑफ होप है कि अगर इस मेडिसिन को दिया गया है तो कुछ चांसेस बेटरमेंट होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास में कोई ऐसा फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि HCQS देने के बाद में पेशेंट ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? देखिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट से हमें बहुत जल्दी पता चल सकता है कि पेशेंट इन्फेक्टेड है या नहीं है। इसमें IgG और IgM एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उससे अगर किसी पेशेंट्स को अर्ली इन्फेक्शन की स्टेज में है तो IgM एंटीबॉडी होती है और लेट इन्फेक्शन की स्टेज में है तो IgG एंटीबॉडी होती है। लेकिन जैसा अभी हमारे यहाँ इंपोर्ट की गई थी चाइना से और डिफेक्टिव किट्स थी तो उसमें मोर देन 95% फॉल्स नेगेटिव केसेस आए हैं, जिसका मतलब ये है कि इवन पेशेंट को कोविड-19 इन्फेक्शन है उसके बाद भी टेस्ट ये दिखा रहा है कि ये नेगेटिव है। तो इसलिए ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड टेस्ट फॉर स्क्रीनिंग पर्पस और अगर किसी को एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद में हम स्वैब, नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब से इसको रिकन्फर्म करते हैं कि पेशेंट को इन्फेक्शन है या नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਬਚਾਵ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਬਚਾਵ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए अल्टीमेट तो बॉडी इम्यूनिटी है, वही हमारे को कोविड-19 से इन्फेक्शन लड़ने के लिए हेल्पफुल रहेगी। वाई ये ओल्ड एज पेशेंट्स में या कोमॉर्बिड पेशेंट्स में कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा ड्रेडफुल है, उसका मेन रीज़न ये है कि इन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है या ओल्ड एज है, इनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है और कोविड-19 इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम होती है। ऐसे पेशेंट्स में मॉर्टलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसको हमें अपनी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने खान पान का ध्यान अच्छा रखें, योगा करें और जितनी हो सके जैसे हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो बड़ी हेल्पफुल होती हैं। एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, अगर प्रॉपर स्लीप ली गई है तो बॉडी इम्यूनिटी एनहांस रहती है। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी रहे। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।